Hello and very good evening to all the students. So students, let's begin our today's English dictation. And today we are going to write about uses of plants. Okay, so please bring your English copy, pencil, pen, eraser, and we will start our English dictation. Okay, let's begin our dictation. So please write it down. Plants are very useful to us. Plants are very useful to us. Full stop. Plants are very useful to us. Full stop. We eat different parts. We eat different parts of the plant. We eat different parts of the plant, as food. Full stop. Okay, write it down. Parts of the plant as food. Full stop. Okay, now write we eat the fruits of the plants. We eat the fruits of the plants. Full stop. We eat the fruits of the plants. Full stop. We eat the fruits of the plants. Full stop. Now write next line. We eat the seeds. We eat the seeds. We eat the seeds. We eat the seeds such as rice, corn, pulses. Full stop. We eat the seeds such as rice, corn, pulses. Full stop. Right, next line. We eat the roots such as we eat the roots such as we eat the roots such as turnip, beetroot, such as turnip, beetroot, and carrot. Full stop. We eat the roots such as turnip, beetroot, and carrot. Full stop. Okay, write it down. We eat stems. Okay, write it down. We eat stems. We eat stems such as sugarcane. We eat stems such as sugarcane. We eat stems such as sugarcane. Full stop. Okay. And today's last line will be, write it down. We eat leaves such as. Okay, write it down. Don't laugh. We eat leaves such as. Write properly. Okay. We eat leaves such as spinach. We eat leaves such as spinach, or spinach, whatever you like to say.
spinach or spinach. Okay, spinach, lettuce and cabbage, full stop. Spinach, lettuce and cabbage. And in comment box you have to answer today's question, and today's question is very easy. You must have eat chocolate, and you have to tell chocolate is obtained from beans of which tree. Okay, that is, which trees beans are used as chocolate. Okay, now we will tally our dictation, so please tally it. Plants are very useful to us, full stop. We eat different parts of the plant as food, full stop. We eat the fruits of the plants, full stop. We eat the seeds such as rice, corn, pulses. Please don't laugh, okay? This is the live dictation. We eat the roots such as turnip, beetroot and carrot, full stop. We eat stems such as sugarcane, full stop. We eat leaves such as spinach, lettuce and cabbage, full stop. And now we will proceed to write our Hindi dictation. Okay, so please open your Hindi copy and we will start our Hindi dictation. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना हिंदी का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं. कल हम लोगों ने स्टोरी लिखी थी नटखट चूहा की, और उसी स्टोरी को आज भी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो लिखिए, चूहा बोला डैश, चूहा बोला डैश, मैं अपनी, चूहा बोला डैश, मैं अपनी टोपी के लिए, मैं अपनी टोपी के लिए, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा, टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ, पूर्ण विराम, खरीदने आया हूँ, पूर्ण विराम. ओके, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ, पूर्ण विराम. कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ, पूर्ण विराम. खरीदने आया हूँ, खरीदने आया हूँ, पूर्ण विराम. ओके, नो राइट. नेक्स्ट लाइन, दुकानदार हंसा, पूर्ण विराम लगाइए. उसके बाद लिखिए, दुकानदार हंसा डैश, दुकानदार हंसा डैश, हंसा डैश, हा हा, एक्सक्लेमेशन मार्क, हा हा, और उसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. ठीक है, हट यहाँ से, पूर्ण विराम. तो दुकानदार हंसा डैश, हा हा, एक्सक्लेमेशन मार्क, हट यहाँ से, पूर्ण विराम. हट यहाँ से, पूर्ण विराम. मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता, पूर्ण विराम. मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता, पूर्ण विराम. मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता, पूर्ण विराम. और आगे इस स्टोरी में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी है. ठीक है, तो आप लोग लिखिए, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता, पूर्ण विराम. मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता, पूर्ण विराम. चूहा गुस्से में बोला,
कुछ नहीं बेचता, लिखिए, हाँ बेचता, पूर्ण विराम लगाइए। आगे लिखिए, चूहा गुस्से में बोला डैश, चूहा गुस्से में बोला डैश, चूहा गुस्से में बोला, प्रॉपरली लिखिए, चूहा गुस्से में बोला, चूहा गुस्से में बोला डैश, गुस्से में बोला डैश, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे, क्वेश्चन मार्क, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे, क्वेश्चन मार्क। यानी कि वो एक तरीके से प्रश्न पूछ रहा है दुकानदार से, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे, लिखिए, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे, क्वेश्चन मार्क। बेचोगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दुकानदार बोला डैश, आगे लिखिए, दुकानदार बोला, दुकानदार बोला डैश, भाग यहां से, पूर्ण विराम। दुकानदार बोला, दुकानदार बोला भाग यहां, दुकानदार बोला डैश, दुकानदार बोला डैश, भाग यहाँ से, पूर्ण विराम। बेकार मेरा समय, बेकार मेरा समय, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर, पूर्ण विराम। बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर, पूर्ण विराम। बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर, पूर्ण विराम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग अपना आज का हिंदी का भी डिक्टेशन फिनिश करेंगे और बाकी की स्टोरी हम लोग कल लिखेंगे। और अब आप लोग अपना हिंदी का डिक्टेशन टैली करें, ठीक है। चूहा बोला डैश, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ, पूर्ण विराम। दुकानदार हंसा डैश, हा हा, एक्सक्लेमेशन मार्क, हट यहाँ से, पूर्ण विराम। मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता, पूर्ण विराम। चूहा गुस्से में बोला डैश, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे, क्वेश्चन मार्क। दुकानदार बोला डैश, भाग यहाँ से, पूर्ण विराम। बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर, पूर्ण विराम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग अपना हिंदी का भी डिक्टेशन फिनिश करेंगे और जो भी हमने डिक्टेशन यहाँ पे बोला है वो आपको एट द एंड देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग अपने डिक्टेशन को भी टैली करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।